Good morning, students. Yesterday we have done the revision on the topic of related to money and barter system and mediation of the bank. So today we are going to discuss various topics related to terms and terms of credit and types of credit. So directly I am explaining you the questions which are related to 3 marks, or it can be also be asked for 5 marks. So accordingly you have to write the answer. So the very first question is mention 3 points of difference between formal sector and informal sector. So yes, we already know what is the difference. First is from the perspective of from where the loan can be taken, that is formal sector में लोन सब कहाँ से लेते हो, बैंक्स एंड कोऑपरेटिव से, जबकि इनफॉर्मल सेक्टर में मनी लेंडर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, एम्प्लॉयर, अगर इनसे लोन लेते हो तो दैट मीन्स यू आर गोइंग फॉर informal source of credit. Then talking about the interest rate, so interest rate is less in formal sector as compared to that of informal sector, that is it is having very high rate of interest. Then consisting about the supervision, so formal sectors are under the strict supervisions of the RBI, whereas informal sectors they are not under any in the supervision of any of the RBI or any such organization. So these are the three you have to write down 3 points of difference. So these are the 3 points of difference. Apart from this, you can also write about the collateral security. In informal sector no collateral is required, whereas in formal sector collaterals are required by the bank in order to get the loan. So this you have to write down as far as the points of difference are concerned. Then talking a second, how does RBI Reserve Bank of India supervise the functioning of the bank, why this is necessary. So here you have to write down, जैसे अपने फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर में जो पॉइंट है डिफरेंस में, उसमें भी हैव ऑलरेडी सीन कि 3 वे से है कि आरबीआई कंट्रोल मेंटेन करता है. इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो पहला क्या होगा कि ऑल दी बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ मिनिमम कैश रिजर्व रेशियो, यूजुअली 15% है, सो दैट दे आर एबल टू मीट. तो आरबीआई देखता है कि ये जो भी कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करने बोला है वो हर बैंक मेंटेन कर रही है या नहीं. सो दिस विल दी फर्स्ट. देन सेकेंडरी इट सीज की बैंक गिव्स लोन नॉट ओनली टू productive sectors or high businessmen or rich businessmen, but also small traders or small businessmen also receives the small borrowers also receives the loan. And third is periodically each and every bank they are required to submit the information relating to किन किन लोगों को लोन दिया, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन दिया, सारे के सारे डिटेल्स अबाउट द लेंडर, बोरोवर्स एंड द इंटरेस्ट रेट टू RBI. So these are the 3 ways in which RBI maintains or supervises the functionings of the bank. Then next question is poor household still depends on informal source of credit. Suppose the statement. So here yes you have to write down कि yes still many poor household are still dependent upon the informal sector. तो इसका रीजन क्या है कि formal sectors they are not available in the rural areas, तो still people are dependent. moreover they are not having the collaterals, क्योंकि बैंक को हमेशा लोन देने से पहले उनको collaterals की जरूरत पड़ती है, तो इनके पास collaterals इतने अवेलेबल नहीं होते हैं, और बैंक बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के वजह से बैंक इनको लोन नहीं देना चाहती है. दैट्स व्हाई दे आर डिपेंडेंट अपॉन द इनफॉर्मल सेक्टर. सो दिस वे यू कैन एक्सप्लेन दी पॉइंट्स. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिपॉजिट विद द बैंक आर बेनिफिशियल टू डिपॉजिटर्स एज वेल एज द नेशन. एग्जामाइन दी स्टेटमेंट. सो हियर रिफर टू क्वेश्चन नंबर 3 लॉन्ग आंसर टाइप. दैट मीन्स इसके अंदर आपको क्या लिखना होगा, जस्ट अ सेकेंड. जैसे बेनिफिशियल कैसे होता है बैंक के तरफ, तो जैसे यहाँ पे आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने होंगे, जैसे कि बैंक इट इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और वो इंटरेस्ट पे करता है. इसके अलावा आप जो भी बैंक में आपके पैसे रहते हो वो सेफ कस्टडी में होता है, मतलब चोरी वोरी होने का कोई भी तरह से डर नहीं होता. सिमिलरली अगर जो भी करंट अकाउंट या सेविंग्स अकाउंट बैंक ने मेंटेन किया हुआ है, बैंक के अंदर आपने मेंटेन किया हुआ है, उसके थ्रू भी आप उस अकाउंट के अगेंस्ट में आप लोन ये कर सकते हो, लोन ले सकते हो. सिमिलरली वट एवर क्रेडिट बैंक प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के, दैट इज हेल्पिंग इन दी डेवलपमेंट ऑफ दी नेशन. इसके अलावा इट इज ऑल्सो हेल्पिंग इन प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड या इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑल्सो पॉसिबल बिकॉज ऑफ द लोन्स प्रोवाइडेड बाय दी बैंक. सो यहाँ पे 6-7 पॉइंट्स दिए हैं. अगर 3 मार्क का क्वेश्चन आता है तो यू हैव टू राइट एनी 3 पॉइंट्स, एंड 5 मार्क का आता है तो यू विल हैव टू राइट दी 5 पॉइंट्स. Then Dhananjay is a government employee and belongs to rich household, whereas Raju is a construction worker and comes from poor rural household. So both are in need and wish to take a loan. Create a list of arguments explaining who between the two would be successfully able to arrange money from formal source. So again ये आपका सेल्फ एक्सप्लेनेटरी या वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है. सो अगेन दी पॉइंट्स में डिफर, बट मेन पॉइंट्स आपको यहाँ पे क्या हाईलाइट करने होंगे. धनंजय रिच हाउस होल्ड को बिलोंग करता है, राजू कंस्ट्रक्शन वर्कर है और पुअर रूरल हाउस होल्ड को बिलोंग करता है. तो अल्टीमेटली लोन अगर देना चाहे, फॉर्मल सोर्स की बात हो रही है यहाँ पे, तो अगर फॉर्मल सोर्स इन दोनों में से लोन देखना चाहे तो किसे मिलेगा, धनंजय को. क्यों?
बिकॉज प्रॉपर कोलेटरल सिक्योरिटीज उसके पास अवेलेबल है, डॉक्यूमेंट्स आर अवेलेबल, टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी है क्रेडिट के रिलेटेड, ऑफकोर्स ही और शी विल बी फॉलोइंग इट वेरी मच दिस। एंड यू हैव टू ऑल्सो राइट डाउन कि बैंक हर जगह पे अवेलेबल नहीं है, रूरल, जैसे अगर रूरल एरिया में चाहिए तो बैंक्स आर नॉट इजीली अवेलेबल, एंड इट इज बीन गेटिंग अ लोन फ्रॉम बैंक इज मच मोर डिफिकल्ट देन टेकिंग अ लोन फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्स, बिकॉज प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, कोलेटरल, जैसे कि मैंने आपको बताया, इन सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तो कहीं ना कहीं धनंजय को लोन मिलना बहुत ईजी रहेगा, बिकॉज ही इज ऑल्सो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इसका मतलब उसके डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत पक्के होंगे। सो दिस वे you can write down in your own, but this main point should be covered. Then next is the credit activities of informal sectors should be discouraged. Support the statement with arguments. तो यहाँ पे आपको ये जो हमने परसेंटेजेस के बारे में देखा था, जो हमने एक डायग्राम देखा था 2 सर्कल का कि रूरल यूथ, रूरल पुअर, रूरल रिच, और इन लोगों के इसमें बाइफर्केशन क्या है। तो दिस सेम पॉइंट्स यू हैव टू एक्सप्लेन। जैसे 85% जो भी लोन लेते हैं पुअर हाउस होल्ड, दे कम्स फ्रॉम इनफॉर्मल सेक्टर। दैट मीन्स जितने भले फॉर्मल सेक्टर्स बहुत हो गए, लेकिन स्टिल मोर एंड मोर पीपल आर स्टिल डिपेंडेंट अपॉन द इनफॉर्मल सेक्टर हु आर चार्जिंग वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है उनको, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सुपरवाइज करने के लिए, कोई एक्टिविटी, उनकी एक्टिविटी सुपरवाइज करने के लिए कोई भी अवेलेबल नहीं है। सिमिलरली जितना ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करते हैं, दैट मीन्स उनकी कॉस्ट ऑफ बोरोविंग भी बढ़ जाएगी। से इसके वजह से क्या हो सकता है, मेनी टाइम इट मे बी पॉसिबल कि दे मे बी इन दी विशियस सर्कल ऑफ डेब्ट trap. So this way you have to answer. Then formal credit needs meet only half of total credit needs of rural people. Where does the other half comes from? So अगर रूरल फॉर्मल से आते हैं तो बाकी के कहाँ से आते हैं? Of course it is coming from the informal sector, because most of the informal वो higher interest rate they are charging. अगेन हायर इंटरेस्ट रेट के अलावा उनके कंडीशंस भी बहुत होते हैं, जैसे कि अगर कोई फार्मर उनसे लोन ले रहा है, ठीक है, तो अगर आगे चल के वो नहीं चुका पाए लोन, तो उनकी जमीन पूरे के पूरे वो मनी लेंडर्स हड़प लेंगे। सो दिस इज ऑल्सो द पॉइंट। देन लोन टेकन बाय पुअर फ्रॉम इनफॉर्मल समटाइम लीड टू डेब्ट ट्रैप बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट रेट। जैसे हमने एक केस देखा था कांता का कि शी हैज टेकन अ लोन फॉर क्रॉपिंग के लिए लिया था, पर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो उसके वजह से वापस उसने लोन लिया, तो उसके वजह से शी वॉज इन द विशियस सर्कल ऑफ डेब्ट ट्रैप। एंड so this way you have to explain the answer. Then what is meant by credit and what does it include? What meant by credit, that is the taking of loan with a promise that you will be paying it in some future period of date, that is termed as credit. This I have already given you the marking in the textbook. Then what does it include, मतलब terms of credit में क्या क्या होते हैं? तो 4 चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले it is the interest rate, collateral, requirement of collateral, documentation and mode of repayment. So these 4 constitutes of terms of credit. Sorry, here I made a mistake. What is meant by term of credit है, मैंने आपको क्रेडिट के बारे में बता दिया, but no problem. So terms of credit is nothing but the requirement, that is the formalities that is to be satisfied by the borrower, that is terms of credit. Then comes, why do lender ask for collateral while lending? Give 3 reasons. Again, it is one of the most important question as compared to बोर्ड पर्सपेक्टिव. सो लेंडर यूजुअली कोलेटरल, तो यहाँ पे सबसे पहले आप कोलेटरल के बारे में थोड़ा सा बता देना कि कोलेटरल का मतलब क्या होता है, एंड देन लेंडर कोलेटरल के लिए क्यों पूछते हैं, तो इट इज़ एज अ सिक्योरिटी, ताकि कल जाके जिसने लोन लिया है वो किसी वजह से ना चुका पाए, तो जो भी आपने कोलेटरल के तौर पे रखा है वो बैंक उसे लेकर उसे सेल करके अपना पैसा वापस, पेमेंट जो भी है वो रिकवर कर सकती है. देन कोलेटरल एसेट्स मतलब क्या है, लैंड, व्हीकल्स, ये जो भी आप ऐसा इवन आपका कोई घर है, कोई भी चीज़ आप जो गिरवी रखते हो वो आप रख सकते हो. इट इज़ फॉर दिस रीजन कि लेंडर यूजुअली कोलेटरल के लिए पूछता है. देन कम्स द लॉन्ग आंसर टाइप फॉर 5 मार्क्स. अगेन, हाउ डू बैंक प्लेस अ इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमी, दिस वी हैव ऑलरेडी सीन. दैट इज यहाँ पे आपको लिखना है कि बैंक इज एक्टिंग एज अ मीडिएटर बिटवीन द बोरोवर्स एंड द सेवर्स. तो ये किस तरह से होता है वो पूरे के पूरे पॉइंट्स आपको पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करना है. एंड वन मोर थिंग, जस्ट रिमेंबर कि हो सके उतना इकोनॉमिक्स में आप पॉइंट वाइज लिखोगे, तो पॉइंट को एक्सप्लेन करोगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, कवरिंग ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. देन हाउ कैन फॉर्मल सेक्टर लोन्स मेड बेनिफिशियल फॉर पुअर, सजेस्ट एनी 5 मेजर्स. सो यहाँ पे फॉर्मल सेक्टर लोन किस तरह से बेनिफिशियल है, तो सबसे पहले तो फार्मर को आपको नॉलेज देने की जरूरत है अबाउट दी फॉर्मल सेक्टर लोन की किस तरह प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग लोन शुड बी मेड ईजियर. जैसे यूजुअली आप देखते हो कि बैंक्स के अगर आपको कोई भी तरह का लोन लेना है तो यू हैव टू लाइक स्पेंड योर लॉट्स ऑफ टाइम बिहाइंड दी बैंक और दी बैंक पर्सन टू गेट दी एम्प्लॉयज. तो कहीं ना कहीं ये जो प्रोसीजर है वो
ईजी करना चाहिए, बिकॉज काफ़ी बार क्या होता है, मेनी टाइम बिकॉज ऑफ स्ट्रिक्ट फॉर्मेलिटीज और टायरसम एंड टफ फॉर्मेलिटीज, मेनी पीपल दे डोंट ऑप्ट बैंक्स कि मुझे नहीं लेना है बैंक क्योंकि यहाँ पे बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो वो जो प्रोसेस है वो थोड़ा इजी करना चाहिए, फास्ट एंड टाइमली होना चाहिए। देन मोर नंबर ऑफ नेशनलाइज एंड कोऑपरेटिव बैंक शुड बी ओपन इन रूरल सेक्टर्स। येस, अर्बन सेक्टर्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रूरल सेक्टर में स्टिल दी नंबर ऑफ बैंक्स आर वेरी लेस, सो more and more number of banks should be open in the rural sectors. Then they should increase the increase facility of providing loans so that dependence on informal source of credit can be reduced. Of course, if more and more formal sectors will be there, your dependency on informal sectors will be reduced. Then it should be, जैसे हमने देखा कि banks should not give loans not only for the productive sector, also for non-productive sectors, banks should be giving loan. And while formal sector needs to expand, it is also necessary that everyone receives this loan. फॉर्मल सेक्टर्स को नीड लोन्स को सिर्फ एक्सपांड मत करो, बट ये भी देखो कि सबको लोन मिल रहा है या नहीं. Then how are deposits with the bank beneficial for individual as well as for the nation? Explain with example. So this we have also seen. तो पहले इंडिविजुअल को किस तरह से बेनिफिशियल होगा, तो आप उसका इंपॉर्टेंस करिए. जैसे अगर आपको बैंक में आपका अकाउंट ओपन करते हो और आपके पैसे डिपॉजिट करते हो, तो उससे आपको क्या फायदा होगा, एंड सेकेंडरी इससे नेशन को क्या फायदा होगा. तो नेशन को क्या फायदा होगा, बिकॉज जितना ज्यादा बैंक लेंडिंग एक्टिविटीज करेगी या लोन देगी, उतना ही ज्यादा वो देश के काम आएगा. देन एक्सप्लेन the difference between formal and informal source of credit. So 5 marks है, तो again which we have already seen over here, so I am not wasting my time over here. Then cheap and affordable credit is crucial for country's development. Explain the statement. So this we have already मैंने आपको मार्किंग दे दिया है. So still I am explaining कि यूजुअली क्या होता है कि लार्जर पार्ट कॉस्ट ऑफ बोरोविंग बहुत हाई होती है, बिकॉज इंटरेस्ट रेट, बिकॉज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग का मतलब क्या है कि इनकम में से जो भी एक्सपेंस करने के बाद जो भी पैसा बचता है, ठीक है, तो वेन एवर एनी लोन इज टेकन, तो आपको वो इंटरेस्ट भरने में आपका पैसा निकल जाता है. सो दैट इज टर्म्ड एज कॉस्ट ऑफ बोरोविंग. दैट इज कि दी बोरोवर्स आर हैविंग वेरी लेस इनकम लेफ्ट फॉर देमसेल्फ. सो जितना ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उतनी ज्यादा कॉस्ट ऑफ बोरोविंग होगी. सो इसके जितना ज्यादा बोरोविंग होगी तो इससे ज्यादा क्या होगा, कॉस्ट ऑफ बोरोविंग बढ़ेगी, तो लोग कम से कम लोन्स लेने के लिए निकलेंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनकी कॉस्ट ऑफ बोरोविंग बहुत बढ़ गई है. सो यूजुअली क्या होना चाहिए कि अगर चीप और एफोर्डेबल क्रेडिट होगा तो इसका फायदा क्या होगा कि कॉस्ट ऑफ बोरोविंग कम हो जाएगी. कॉस्ट ऑफ बोरोविंग कम हो गई तो लोगों के हाथ में जो इनकम है वो बढ़ जाएगी, एंड नाउ इट इज पॉसिबल फॉर मेनी पीपल टू बोरो चीपली. वो अगर क्रेडिट इजीली अवेलेबल होगा तो क्या होगा, दे विल बी एबल, फार्मर्स है, दे विल बी एबल टू ग्रो क्रॉप्स, बिजनेस कर सकते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलप कर सकते हैं, न्यू इंडस्ट्रीज या ट्रेडिंग में अपना हाथ जमा सकते हैं. सो दिस वे यू हैव टू एक्सप्लेन दी आंसर. यहाँ पे आपको पूरे का पूरा कॉस्ट ऑफ बोरोविंग को समझाते हुए आपको समझाना है कि उसके फायदे क्या है. देन विच आर दी टू मेजर सोर्स ऑफ फॉर्मल सेक्टर्स इन इंडिया, वाई डू वी नीड टू एक्सपांड द फॉर्मल सेक्टर. तो टू मेजर सोर्स ऑफ फॉर्मल सोर्स कौन सा है, बैंक्स एंड कोऑपरेटिव. एंड वाई वी नीड टू एक्सपांड, तो दैट वी हैव ऑलरेडी सीन इन अवर प्रीवियस question. Then why it is necessary for banks and cooperatives to increase their lending in rural areas? So again this also we have already seen. Most of the poor household are still dependent on informal source. Explain the statement. Again 3 mark में we have already seen this, discuss this question. And next describe the vital and positive role of credit with example. Or what is credit, how this credit play a vital and positive role. Explain with example. तो सबसे पहले तो क्रेडिट का मतलब क्या है कि अग्रीमेंट जहाँ पे लेंडर इज सप्लाइंग दी बोरोवर विद मनी, गुड्स और सर्विस इन अ रिटर्न विद प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट. वाइटल एंड पॉजिटिव रोल कैसे कहते हैं, तो जैसे अगर इफ यू आर गिविंग, जिनको लोन की जरूरत है, अगर आप उनको क्रेडिट, टाइमली क्रेडिट देते हैं, तो वो अपना जो भी काम है, जैसे अगर किसी फार्मर को इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए चाहिए या केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स खरीदने के लिए पैसा चाहिए, अगर उसको लोन मिल जाता है तो ही और शी विल बी एबल टू डू दी फार्मिंग एक्टिविटीज वेरी मच क्लियरली. सिमिलरली किसी को अपना घर कंस्ट्रक्ट करने के लिए उनको पैसा चाहिए, सो अगेन ये इसके लिए भी लोन इज कम्स टू बी वेरी हेल्पफुल. देन इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन लॉट्स इन रेजिंग देयर स्टैंडर्ड्स. जैसे कि अगर आपको कुछ मशीन लेना है, लाइक कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स महंगी 2-3 इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लेनी है, लोन ले रहे हो, बाइक लेनी है, लोन ले रहे हो, कार लेनी है, लोन ले रहे हो, तो क्या है, आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे भी इसका इफेक्ट होता है. एंड एग्जाम्पल ऑफ सलीम, जैसे हमने शू मेकर जो सलीम का एग्जाम्पल था वो ऑलरेडी देख लिया था. तो दिस वे यू कैन आंसर दी, एक्सप्लेन दी आंसर. सिमिलरली आपको नेगेटिव, इसमें नेगेटिव
रोल ऑफ क्रेडिट के रिलेटेड भी आ सकता है, तो उसमें आप कांता का एग्जाम्पल लेके यू कैन एक्सप्लेन दी आंसर. And then how do bank mediate between those who have surplus and those who need money? So this already we have discussed. मैंने आपको ये अच्छे से मार्किंग भी दे दिया है टेक्स्ट बुक में, so you can refer the questions. So that's all. With this I am completing with the revision of the third chapter as well. If you are having any doubt, you are free to ask me anytime. Thank you.